Hi friends, welcome to the channel of Unacademy CA Final. Myself Abhishek Bansal. I'll be taking a subject audit, advanced auditing and professional ethics. So today we are here with a discussion on topic of peer review, a weightage of approximately 4 marks chapter. Now I request each one of you to subscribe this channel for regular updates on subject of audit and other 7 subjects, and for access of all the lectures live and recorded both, please download Unacademy app from the Google Store and iOS Store. When you download and subscribe to a plan as per your requirement, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months or 24 months, in case if you want practical subjects also, use code ABHICA. When you use code ABHICA, you'll get 10% discount. ABHICA. Okay guys, so today we'll be discussing a topic called as peer review. Now let's understand what is exactly peer review. Why do we do peer review? क्यों applicable है, किस किस को applicable है, कब applicable है, ठीक है? So the topic name is peer review. Average weightage would be like 4 to 6 marks, 4 to 6 marks. और generally whether you are old syllabus or whether you are new syllabus, ये आपको आता ही है, ठीक है? Now अब ध्यान से देखना. So right now we are understanding the concept of peer review. In case if you have a listed client, if there is a listed entity, as per LODR, what is LODR now? Listing obligation and disclosure requirement. Listing obligation and disclosure requirement. Every listed entity has to get his audit done through a CA firm जिसके पास peer review certificate है, जिसका peer review हो रखा है. So if there is a listed entity, if there is a listed company, उसको अगर audit करानी है, so mandatorily उसको एक ऐसी CA firm से करानी होगी, एक ऐसी CA firm जिसका क्या हो रखा है, peer review हो रखा है. Now the question is, sir, now what is peer review? So इतना तो समझ में आ गया कि बस listed entity and एक CA firm की बात हो रही है यहाँ पर. So now, for example, a company called as Reliance Limited, it's a listed entity, and इनको अगर ऑडिट करवाने तो इनको एक ऐसी सीए फर्म के पास जाना पड़ेगा जिसका peer review हो रखा है, जिसके पास peer review सर्टिफिकेट होगा. Now, so let us take an example of the CA firm as AB and Co. AB and Co. Now, AB and Co can do audit of Reliance. Oh, sorry. AB and Co do audit of Reliance only if it has peer review certificate. Only if it has peer review certificate. Now let's understand the term what is peer and what is review. Now guys, so let's understand what is peer and what is review. Let's first read the basic intro. PRB, the peer review board, was established by the institute. So the department of the institute which orders peer review is basically called as PRB, peer review board. It was established in 2002, which regulates the process and statement on peer review was issued. It is important because now previously it was equity listing agreement, now it is changed to LODR. Listing obligation and disclosure requirement requires that listed companies to be audited only by the firms which are practice units or PU, which are called as PU or practice units, holding valid peer review certificate with effective from 5th April 2010. With effective from 5th April 2010. So उस दिन से mandatory किया हुआ है. Now, certain basic definitions. Now, what is peer and what is review? All the students who are watching me today are peer of each other. Person of same level or called as peer. You and I are होने वाला peer. बराबर? May or November, whichever is earlier, we will be होने वाला peer. Now, peer means person of same level, same standing. Review means re-examination or retrospective evaluation. It means re-examination or retrospective evaluation. So now here comes out the definition of peer review. It is an examination and review of systems and procedure to ensure the audit quality.
to ensure the audit quality. Now hold on. So few minutes back I had told कि अगर रिलायंस को ऑडिट कराना है, अगर रिलायंस को ऑडिट कराना तो उसको एक ऐसे सीए फर्म को पकड़ना होगा जिसके पास वैलिड पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट है. नो, व्हाई? सो फॉर एग्जांपल एबीएंड को जब वो अपनी ओपिनियन देगा, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट पे जब ओपिनियन देगा तो कह सकता है कि क्वालिफाई है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है. सो एबीएंड को ने जज कर दिया कि सर रिलायंस कैसी है, रिलायंस अच्छी है, रिलायंस बुरी है, रिलायंस बेकार है, ठीक है, जज कर लिया. बट कोई ये तो बताओ कि एबीएंड को कैसी है. कल को उठ के मार्केट में से कोई भी उन पे उंगली उठा सकता है, बराबर, कोई भी उन पे उंगली उठा सकता है कि बस आपके पास क्या है, आप सिस्टम बराबर है क्या, आपका प्रोसेस बराबर है क्या. तो इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा, कोई हमसे पहले से उंगली उठाए हम पर, हम पहले से अपना एक रिव्यू करवा लेते हैं. सो एक सीए फर्म को रिव्यू करने के लिए कौन आएगा, उसका भाई. भाई मतलब कौन, एक और सीए फर्म. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर फर्म कॉल्ड एज एसआरके एंड एसोसिएट्स. SRK and Associates. So SRK and Associates will be reviewing AB&Co. Will be reviewing AB&Co. Now इस चैप्टर के लिए AB&Co को बोला जाएगा PU. PU means practice unit. PU means practice unit. SRK and Associates में से जो मिस्टर SRK होंगे वो जाएंगे रिव्यू करने के लिए. So he would be called as the reviewer. 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 Now, so आधे लोगों को क्या लग रहा है कि AB&Co का ऑडिट हो रहा है. नहीं, SRK and Associates AB&Co का ऑडिट नहीं कर रहे हैं. अच्छा तो सर SRK and Associates रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं हो रहा है यहां पर. सो मिस्टर SRK जो रिव्यूअर है वो AB&Co का क्या देखने चाह रहे हैं कि बॉस AB&Co जब रिलायंस की ओपिनियन देने गए, जब वो लोग ऑडिट करने गए, क्या उनके पास प्रॉपर सिस्टम था ऑडिट करने का, क्या उनके पास प्रोसीजर्स थे ऑडिट करने के लिए, उनकी ऑडिट टीम जिसको बोलते हैं अपन एंगेजमेंट टीम, ठीक है, जो ऑडिट करने जाती है, ठीक है, एंगेजमेंट टीम, क्या उनके पास प्रॉपर सिस्टम, प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन था, क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया था, क्या उनको बराबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग प्रैक्टिस के बारे में नॉलेज दी गई थी, स्किल्स दी गई थी. सो बेसिकली SRK जो रिव्यूअर है वो क्या देख रहा है यहां पर, वो देख रहा है बच्चों, यहां पर देख रहा है क्वालिटी. क्या देख रहा है वो, क्वालिटी. किसका क्वालिटी, ऑडिट क्वालिटी. We are just coming here to evaluate the quality of audit of AB&Co with respect to Reliance, with respect to Reliance. समझा आपको सर, मतलब क्यों सर, मतलब क्या क्यों करवा रहे चीज. एक तो पहला चीज तो एलओडीआर ने मैंडेटरी कर रखा है, दूसरा टू मेंटेन द क्वालिटी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर वाले आर्टिकल को भेज दिया AB&Co ने, जा बेटा जा फाइनलाइजेशन कर करा. नाउ रिलायंस जैसा जो क्लाइंट है, जो हाथी क्लाइंट है अपना, एकदम बड़ा क्लाइंट है, क्या फर्स्ट ईयर का आर्टिकल क्या वो वहां पर जाके फाइनलाइजेशन कर सकता है? सर इट्स हाईली डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल सर. यू वुड रिक्वायर सीनियर्स, यू वुड रिक्वायर चार्ट अकाउंटेंट्स. तो बॉस कौन गए वहां पर, वो लोग वर्किंग पेपर्स अपने कलेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे. अच्छा वर्किंग पेपर फिजिकल फॉर्म में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है, क्या क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली मेंटेन की जा रही है कि नहीं, इंडिपेंडेंस का क्लॉज मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे. पता चला AB&Co कि किसी लोगों ने वहां पर शेयर्स बाय कर रखे हैं, कुछ इंडेप्टेडनेस है, कुछ गारंटी दे रखी है वहां पर, तो यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं. सो बेसिकली रिव्यूअर इज कमिंग हियर टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, सिस्टम, प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा बैंक ऑडिट की जब अपन बात करते हैं, बैंक ऑडिट, ठीक है, सो बैंक ऑडिट में क्या होता है, देयर हैज टू बी अ पार्टनर हु शुड बी सीसा डीसा क्वालिफाइड, बराबर, मैंडेटरी है वो चीज. तो ऐसी सब चीजें चेक करेगा वो, ठीक है. अब SRK एंड एसोसिएट्स जब AB&Co का ऑडिट करेंगे, ठीक है, आई मीन जब रिव्यू करेंगे, तो उनके पास पूरा एक्सेस होगा रिलायंस के प्रति का, बराबर, कि रिलायंस को कितना फीस चार्ज कर रखा है. अब SRK सोच भी सकता है भैया इस साल AB&Co ने लोग से ना 20 लाख रुपए लिए ऑडिट के, 20 लाख रुपए, अपन मस्त मुकेश अंबानी को मेल करते हैं एंड वी विल चार्ज लाइक 10 लाख रुपीस. इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन. आप नहीं कर सकते, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यू विल मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यू विल नॉट एक्सेस दैट क्लाइंट फॉर 2 years. तो यहां पर कूलिंग पीरियड 2 years का है. समझा आपको इतना चीज. नाउ
अब AB एंड को के सिस्टम कैसे है, प्रोसीजर्स कैसा है, उनके पास प्रॉपर एंगेजमेंट टीम थी कि नहीं, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया था कि नहीं दिया था। आपने देखा होगा आपके सीए फर्म में भी एवरी फ्राइडे और सैटरडे का सेकेंड हाफ में आपका बॉस या कोई ऑफिस का सीनियर फर्म में बुला के आपको एक ट्रेनिंग सेशन देता होगा, एक सेक्शन समझाते होंगे, देखा होगा ना आप लोग ने ऐसा चीज। सो दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ पीयर रिव्यू। हम ये नहीं देख रहे कि AB एंड को ने ओपिनियन क्वालिफाई दी थी जबकि एडवर्स आना चाहिए था, हम ये नहीं देख रहे। हम देख रहे कि आपने क्वालिटी दी, आपने क्वालिफाई किया है आपने या एडवर्स दिया है, तो आपने किस बलबूते पे किया, आपके पास क्वालिटी ऑफ ऑडिट था कि नहीं था। सो मोटा माटी ये जो चैप्टर होता है ये बेसिकली बिग फोर एंड जो बड़ी फर्म्स होती है जहां पर सब चीजें मेंटेन होती है, आर्टिकल्स को ID कार्ड दिया जाता है, जब उनको लैपटॉप दिया जाता है उसके भी कोड लिखा होता है, आपने देखा होगा ना। छोटे मोटे CFM में बहुत रेयर होता है, बट मिड एंड लार्ज एंड बिग फोर्स उसमें आपने देखा होगा। सो इफ एनीवन फ्रॉम बिग फोर इज वाचिंग, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी, आपको पता होगा हाफ ऑफ द टाइम यू आर इन ट्रेनिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। दैट इज व्हाई ऑल द बिग क्लाइंट्स गो टू बिग फोर ओनली और द लार्ज साइज फर्म्स। ठीक है, नाउ लेट्स रीड फ्रॉम द नोट्स। Now, what is practice unit? Members in practice whether sole proprietor or firm. We have understood this part. Now, AB and Co, Reliance Co, let us assume GST audit भी कर रहा होगा, let us assume, ठीक है, या उनको वो ROC का काम भी करते होंगे उनका, या किसी और क्लाइंट के लिए, let us assume टाटास के लिए वो लोग इनकम टैक्स का काम करते होंगे, कुछ स्क्रूटनी हैंडल करेंगे, अलग अलग क्लाइंट्स का अलग काम कर रहा होगा। सो क्वेश्चन ये आता है सर, पीयर रिव्यूअर जो आएगा क्या वो हर काम चेक करेगा? क्या मतलब हर काम के लिए क्वालिटी दिखाएगा क्या ROC के काम के लिए, GST के काम के लिए, स्क्रूटिनी के लिए, इनकम टैक्स के लिए, सर क्या क्या देखेगा वो? सो यहां पर पीयर रिव्यू का सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन आता है कि बस रिव्यूअर इज इंटरेस्टेड ओनली इन वन वर्क इन योर ओनली वन एंगेजमेंट। विच एंगेजमेंट? इन योर assurance engagement. Now half of the crowd is like, sir, what is assurance now? Beta, in your IPCs you have studied audit and assurance. So in simple words we call it as attestation engagement. Beta, attestation थप्पा वाला attestation नहीं. In simple words we call it as audit engagement. So in this chapter you will always say it as assurance engagement or attestation engagement. मतलब audit, जो आपके audit clients होंगे उन्हीं का quality check किया जाएगा. So for example AB and Co के पास टाटा है, बिरला है, TCS है, रिलायंस है, ये सब audit clients है. तो ये चार में से कोई भी एक को मैं सैंपल पे SRK एंड एसोसिएट्स ले सकता है, कोई भी एक को सैंपल बेसिस पे, ठीक है। उसको सैंपल चेंज करना, सैंपल चेंज भी कर सकता है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। अगर हम ओपिनियन दे देंगे तो हम तो क्या बन जाएंगे, ऑडिटर बन जाएंगे। ऑडिटर तो AB एंड को है। SRK क्या देख रहा है कि बस रिलायंस के प्रति जब आपने ऑडिट की, कि आपने क्वालिटी मेंटेन की है कि नहीं की। समझा आपको चीजें। Now what is assurance service? As specified in the framework of assurance engagement, in simple words audit engagement या फिर attestation engagement या फिर assurance engagement. So guys, have you understood this slide completely? It's very simple. So peer review board of the institute orders for the peer review. You can voluntarily also apply. Peer means person of same standing. Review means re-examinations, ठीक है, और retrospective evaluations. Now यहाँ पर अपन क्या चेक कर, खाली ये ध्यान रखना, डेफिनेशन क्या बोलती है, एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर टू एंश्योर ऑडिट क्वालिटी, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। नाउ सी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। So this is, it says auditing and verification of the financial transactions, books, accounts and records, and verification or certification of financial accounting and related statements to ensure that in carrying out a test function, a test simple भाषा मतलब audit मतलब क्या, assurance engagement, members comply with technical standards and they have a proper system for maintaining the guys, this is very important word, quality of attestation services. आप भले टैक्सेशन का काम कर रहे हो, GST का काम कर रहे हो, आप ROC का काम कर रहे हो, आप IBC का काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टीट्यूट को करो, कोई चेकिंग नहीं है। हम खाली क्या देख रहे हैं, ऑडिट की बातें कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑडिट की बातें। नाउ इट इज एसेंशियल एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर दे आर
in existence or effective or operating during the period of review. मतलब प्रॉपर सिस्टम है, इफेक्टिव है एंड चल रहा है. प्रॉपर सिस्टम है, इफेक्टिव है एंड चल रहा है. बोलो, प्रॉपर सिस्टम है, इफेक्टिव है एंड चल रहा है. एग्जिस्टेंस, इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव. कूल. Now, the next question says, what is the scope or focus of peer review? So guys, this is important answer. 3 mark, 4 mark, 5 mark answer. Scope of peer review, focus of peer review. The first point you will write applicability. So we have already studied this. It says it applies to all the assurance engagement. It applies to all assurance engagement. Assurance means audit. Audit means attestation service. Every PU based on the category as determined below will be subject to peer review in accordance with this statement. We'll be studying that later, the category. Now, coverage of review. So what all things should be covered in review? So I'll give you a code here. It would be first. F. Full compliance with council guidelines and directions. You will say full compliance with council guidelines and directions. I. Initiating training program for staff. Now the first point says full compliance with council guidelines and directions. So if I have to ask you, what are those guidelines? What are those directions? So you must have heard something called as CPE, CPRs. You must have heard this part, like CPRs in your office. What are the CPRs? Continuing professional education. It says continuing professional education. That means every CA firm, I mean the practicing CA, including job also. So ICA has given them certain hours of study. Okay, boss, even after becoming CA, you have to study. You have to update yourself. So as per the program, institute decides the number of hours to be credited. So first year is exempt after you become a member. First year is exempt. Second year onwards, there is a rule. Number of hours to be completed, and they follow calendar year. Like from Jan to December, you have to complete certain CPRs. So for example, I have attended a 4-hour session with institute. Okay, I went to institute. I have attended that session. So actually, sir, 4 hours ka you should get 4-hour credit. But here it is not that. I may get 1 hour credit in my CPRs block, or maybe 2 hours, or maybe 3, or maybe 4. So ICI decides as per the program. For example, अगर मैंने 3 दिन session attend किया, 10 to 6, 10 to 6, 10 to 6. So 8 hours, 24 hours. So I should get 24 hours credit. No, ICI would say you will get only 10 hours credit. So it depends upon the ICI. So even if you do 100 hours of your course, 100 hours of your video lectures, you will not get 100 hours of credit. Depending upon program to program, ICI fixes the number of CPRs to be credited. So that's one of the guidelines or direction which a practicing CA has to fulfill it. I mean job wala also, but job wala को lenient है, practicing वालों के mandatory है. आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने अटेंड किया होगा ना बॉस के भी आप पे खाना ICI का अल्टीमेट बुफेट. Then I initiating training program for the staff that I told you कि फ्राइडे सैटरडे को आते हो, ठीक है. आर से टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग. एविडेंस कैसे कलेक्ट कर रहे हो, जैसे नॉर्मल फॉर्म में कैसा होता है, अंकल डेटा दे दो मेल कर दो अंकल coolhandsomeboy143@gmail.com, बराबर. या पेनड्राइव में डेटा दे दो, उसी पेनड्राइव में वीडियो लेक्चर, उसी पेनड्राइव में सारी पिक्चर्स है. पर बिग फोर बड़ी फॉर्म में कैसा होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल आता है उनका, बराबर. और पूरी एंगेजमेंट टीम, पार्टनर, सीनियर पार्टनर, सबको सीसी किया जाता है. देन systems and procedure for carrying out assurance engagement and compliance with technical, professional and ethical standards. Compliance with technical, professional and ethical standards. So this is first. Full compliance with council guidelines and directions. I say initiating training program for the staff. R, quality of reporting. S, systems and procedure for carrying out assurance engagement. T, compliance with technical, professional and ethical standards. So let's revise it again. First, full compliance with council guidelines and directions. I say initiating training program for the staff. R, quality of reporting. S, systems and procedure for carrying out assurance engagement. T, compliance with technical, professional, ethical standards. Okay. Next, quality of reporting. The form and content of report and the policies and procedures to provide assurance engagement. So this would be a point number 2 would be coverage of review, and this would be 3, quality of reporting.
Perfect. Now the question arises here is in everyone's mind, sir, what do you mean by the word technical, professional, ethical standards? Technical, professional, ethical standards. Technical, professional, ethical standards. So again, this is point number 4, and this can also come in again a separate answer in exam. What are technical standards? What are technical standards? So guys, play safe. Professional standards are your code of ethics. ठीक है? Ethical standards जो है ethics, code of ethics, professional ethics. Ethical standards are those your independence, confidentiality, work performed by others, audit evidence, audit planning. Those principles you used to study in your IPCC. What are technical standards? So whatever difficult things you have studied till date, that is your technical standard. That is your technical standards. Now what are these technical standards? जितना भी टफ चीजें आप लोग ने पढ़ा है, जितना भी टफ चीजें, सब बोल देने का कि हमारा टेक्निकल स्टैंडर्ड है. ठीक है? ए सर ए एस, सर ए से, सर ए फॉर एफ, सर एस ए ई, स्टेटमेंट्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एस क्यू सी, स्टेटमेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स, सर गाइडेंस नोट. ऐसे ही नहीं पढ़ा, क्या गाइडेंस नोट पढ़ेंगे? क्लैरिफिकेशंस अंडर ए से, फिर नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस इंक्लूडिंग दो सेल्फ रेगुलेटरी नेचर एंड रेलेवेंट स्टैट्यूज एंड रेगुलेशन. रेलेवेंट स्टैट्यूज एंड रेगुलेशन. तो ये पूरा सूरजमुखी आपको याद करना है. बहुत सिंपल है. व्हाट आर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स? व्हाट आर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स? बोलो. ए एस, एस से, एफ आर एफ, एस ए ई, एस क्यू सी, गाइडेंस नोट, क्लैरिफिकेशन अंडर एस से, फिर नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस एंड relevant statutes and regulation. Relevant statutes and regulations. I'm giving you 5 minutes time, guys. Revise it right now. Technical standards. अभी की अभी इसको रिवाइज करो, जल्दी से जल्दी, अभी की अभी याद करो. So AS, SA, FRF. AS, SA, FRF. Then you will say SAE, SQCs. Guidance note. फिर clarification under SS, clarification under SS. फिर notification direction including those self-regulatory in nature. फिर relevant statutes and regulation. Relevant statutes and regulation. तो 4 मार्क का आंसर what are technical standards. या फिर बच्चों अलग से आ सकता है what is scope of peer review and focus of peer review. Now, the next answer says applicability of peer review. Next answer says applicability of peer review. So क्या है? 3 लेवल डिवाइड कर रखे हैं स्टूडेंट. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. Once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. क्या बोलेंगे? Once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. 3 लेवल है. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. Once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. अब पढ़ते अपन, देखो भी. Every PU based on their category as determined below will be subject to peer review in accordance with this statement. ठीक है? लेवल 1 का peer review कब होगा? Once in 3 years. Once in 3 years. बच्चों लेवल 2 का peer review कब होगा? Once in 4 years. Once in 4 years. लेवल 3 का peer review कब होगा? Once in 5 years. Once in 5 years. तो 3 लेवल है. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, once in 3 years, once in 4 years, once in 5 years. So guys, this could be helpful in your I would say MCQ part. MCQ part में काम आएगा. Descriptive बहुत rare, पर MCQ में it's important. Now what is level 1? एक ऐसी CA firm जिसके पास start audit of PSU, that means public sector undertaking, और बैंक, और इंश्योरेंस, और म्यूचुअल फंड, और असेट मैनेजमेंट कंपनी, और लिस्टेड कंपनी, वेदर इक्विटी या फिर डेट. आधे लोग को क्या लगता है कि सर ये लोग का पीयर रिव्यू होगा, मतलब स्टार्ट आउट ऑफ पीएसयू, बैंक, इंश्योरेंस, ये लोग का पीयर रिव्यू होगा. नहीं गाइस, एक ऐसी सीए फर्म जिसके पास स्टार्ट आउट ऑफ बैंक, पीएसयू,
इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, असेट मैनेजमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी वेदर इक्विटी और डेट, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स है। तो उस सीए फर्म का पीयर रिव्यू कब होगा? वो लोग लेवल 1 में फॉलो होते हैं एंड वो लोग का पीयर रिव्यू होगा 1 in 3 years, 1 in 3 years. Number 2, entities having public fund of more than 50 CR, donation contribution of more than 50 CR, fund from CGSG more than 50 CR. बेटा तो तीनों फिगर कितने more than 50 CR के? नेटवर्थ मोर देन 500 CR, नेटवर्थ मोर देन 500 CR, तीनों फिगर 50 50 50, नेटवर्थ मोर देन 500, नेटवर्थ मोर देन 500। तो ध्यान रखना ये लोग कहां जाएंगे? लेवल 1 में जाएंगे। अगर लेवल में गए तो फिर भाई 1 in 3 years, 1 in 3 years। नाउ लेवल 2, सो लेवल 2 का कब होगा? 1 in 4 years। अब ध्यान से देखना, ए स्टैट इंटरनल कंकरेंट सिस्टम टैक्स audit, departmental review of branch or office of public private foreign banks, insurance and cooperative banks। सर लेवल 1 है लेवल 2 तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता दिख रहा है, कंपेयर करो एक बार, देखो स्क्रीन पे। लेवल 1 और लेवल 2 तो मिलता जुलता दिख रहा है ना यहां पर, देयर इज अ डिफरेंस। जैसे बैंक है, बैंक दिख रहा है आपको, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक, इंश्योरेंस भी इधर है। सर फर्क क्या है? बैंक में सब लोग कवर हो गए ना। लेवल 1 में आपके पास स्टार्ट ऑडिट ऑफ बैंक है, इंश्योरेंस है, स्टार्ट ऑडिट। लेवल 2 में क्या है आपके पास? स्टार्ट इंटरनल कंकरेंस सिस्टम टैक्स, डिपार्टमेंटल रिव्यू ऑफ ब्रांच ऑफ पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक। मेन ऑडिट अगर आपके पास है तो आप लेवल 1 में जाते हो, आपके पास ब्रांच का स्टार्ट ऑडिट है, ब्रांच का इंटरनल ऑडिट है, आपके पास ब्रांच का सब चीजें है, तो भैया आप कहां जाएंगे? आप लेवल 2 में जाएंगे। समझा आपको इतना चीज? आप लेवल 2 में जाएंगे। फिर या फिर स्टार्ट ऑडिट ऑफ आरआरबीज। ना बच्चों, व्हाट आर आरआरबीज? आई विल राइट हियर, रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो स्टार्ट ऑडिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 5 CR, मोर देन 5 CR and or annual turnover of more than 50 CR, नेटवर्थ मोर देन 5 CR, एनुअल टर्नओवर मोर देन 50 CR। सो यहां पर एक और फिगर आ गया कंपैरिजन के लिए। अगर नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, एक ऐसी भैया सीए फर्म का नहीं, भैया सीए फर्म का नहीं, एक ऐसी एंटिटी जिसका नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ है, तो अगर वो जो सीए फर्म है जो उसको ऑडिट कर रही है, तो वो सीए फर्म को पीयर रिव्यू कब करवाना पड़ेगा? 1 in 3 years। एक ऐसी एंटिटी जिसका नेटवर्थ मोर देन 5 CR है, तो वो जो सीए फर्म उसका जो ऑडिट कर रही है वो लोग कहां पहुंचेंगे? लेवल 2 में। तो 1 in 4 years, 1 in 4 years। ठीक है। अब अपने से चिंटी पिंटी सीए फर्म, भैया हमारे पास इतने बड़े बड़े ऑडिट तो है नहीं भैया, तो हम जैसे लोग कहां पहुंचेंगे? सर लेवल 3 में पहुंचेंगे आप। तो आपका पीयर रिव्यू कब होगा? 1 in 5 years। आपका पीयर रिव्यू कब होगा? 1 in 5 years। आपका पीयर रिव्यू कब होगा? 1 in 5 years। कूल। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर ले उसको। बच्चों 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 1 in 3 years, 1 in 4 years, 1 in 5 years। एक ऐसी सीए फर्म जिसके पास बड़ी बड़ी ऑडिट, बड़ी बड़ी ऑडिट, बड़ी बड़ी क्या होती है? स्टार्ट ऑडिट ऑफ पीएसयू, बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, इक्विटी वेदर लिस्टेड कंपनी वेदर इक्विटी और डेट, और एंटिटीज हैविंग तीनों फिगर 50 करोड़ के, नेटवर्थ मोर देन 500 से। 3 फिगर कौन से? पब्लिक फंड, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, फंड फ्रॉम सीजीएसजी, नेटवर्थ खाली मोर देन 500 करोड़, नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़। लेवल 2, स्टार्ट इंटरनल कॉन्करेंट टैक्स सिस्टम, डिपार्टमेंटल रिव्यू ऑफ ब्रांच ऑफ पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक और इंश्योरेंस और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर स्टार्ट ऑडिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स या फिर एनबीएफसी, इनकी स्टार्ट ऑडिट, या फिर स्टार्ट ऑडिट ऑफ ऐसी एंटिटीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 5 CR, एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 500 CR। आप कहां पहुंचेंगे बेटा? आप सीए फर्म जो है वो पहुंचेंगे 1 in 4 years में, लेवल 2 में। अपने चिट्टी पिंडी सीए फर्म है अपन लेवल 3, 1 in 5 years, 1 in 5 years। समझा आपको इतना चीज? परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। वही 4 मार्क के आसपास का एक चैप्टर है, तो 4 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एग्जाम क्वेश्चन।
क्या कहता है? इट सेज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर. बच्चों, अगर तुमको पीयर रिव्यूअर बनने का है, हाँ सर मेरे को बनने का है, तो क्या क्वालिफिकेशन? ध्यान से देखो. You should be a member of at least 10 years of experience and in practice. म्हणजे आप COP वाले लड़के होने चाहिए और आपको प्रैक्टिस करते करते कितना 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 10 years का आपको एक्सपीरियंस चाहिए. You must have undergone requisite training. कौन सी ट्रेनिंग? आर्टिकलशिप नहीं राजा, अरे आर्टिकलशिप नहीं रे, पीयर रिव्यूअर वाली जो ट्रेनिंग होती है वो. Have furnished a declaration to the board. कौन से बोर्ड को? PRB को. वही कि भी मैं रेडी हूं बनने के लिए पीयर रिव्यूअर. Have signed the declaration of confidentiality. Have signed the declaration of confidentiality and have conducted level 1 entities audit for at least 7 years. Have conducted level 1 entities audit for at least 7 years. Have conducted level 1 entities audit for 7 years. For 7 years. ठीक है, वापस पढ़ते हैं इसको अपन, वापस पढ़ते हैं. ठीक है, ध्यान सुनो अभी. इफ यू वॉन्ट टू बी अ रिव्यूअर, आपके पास आप प्रैक्टिस में होना चाहिए एंड 10 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट का, बराबर. एंड लेवल 1 एंटिटी की ऑडिट, लेवल 1 एंटिटी की ऑडिट आपको मिनिमम 7 years तक करनी है. यू मस्ट हैव अंडरगॉन द रिक्विजिट ट्रेनिंग, फर्निश्ड डिक्लेरेशन टू द बोर्ड एंड हैव साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ अग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. क्लियर? साथ में एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन है. He shall not have any disciplinary action pending or proceedings pending against him, or never have been found guilty, or never been convicted by a court, or there should be no obligation or conflict of interest in the practice units or its partners or its personnel. क्या मैं मेरे भाई की CA फॉर्म का रिव्यू कर सकता हूं? मैं पीयर रिव्यूअर बन गया, ठीक है, अजूम को 10 साल का एक्सपीरियंस, लेवल 1 एंटिटी ऑडिट अपन ने कर लिया 7 साल तक, और मेरे को मेरे भाई की CA फॉर्म का रिव्यू करने का है. अलाउड है नॉट अलाउड? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सो बच्चों ये इतना सा आंसर 4 मार्क का आंसर है. इतू सा आंसर 4 मार्क का आंसर, इतू सा आंसर 4 मार्क का आंसर. बहुत सिंपल. वापस करें एक बार, लेट्स डू इट अगेन. He should be in practice and having 10 years का experience, have undergone requisite training, have furnished a declaration to the board, have signed declaration of confidentiality and conducted level 1 entity audit for at least 7 years. For 7 years. ठीक है. साथ में he shall not have any disciplinary actions or proceeding pending, never been found guilty, not been convicted by a competent court, and no conflict of interest in the PU or its practice or its personnel or its partners. Cool? एक बार पढ़ लो इसको फटाफट. Perfect. Now, next answer. Next answer says qualified assistant. ध्यान सुनो अभी. So next answer says guys qualified assistant. अब क्या फायदा, क्या होगा? ध्यान सुनो. So peer reviewer जो होता है इंसान, वो अपने साथ एक हेल्पर को लेके आ सकता है. एक हेल्पर मतलब कौन? क्वालिफाइड असिस्टेंट. आर्टिकल नहीं रे भैया, आर्टिकल नहीं जा सकता. यहां पर डेफिनेशन दी है क्वालिफाइड असिस्टेंट की. क्या कहते हैं देखो अभी. क्वालिफाइड असिस्टेंट
द रिव्यूअर में टेक हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड असिस्टेंट वाइल कैरिंग आउट द पीयर रिव्यू. कितने? एक. ही कैन टेक हेल्प ऑफ ओनली वन क्वालिफाइड असिस्टेंट. He can take help of only one qualified assistant who should be a CA, and does not attract any disqualification under section 8 or 21 under CA Act 1949. मतलब सर कि भैया वो जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949 वाला, उसके तहत भैया वो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, वहां पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए. एंड ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो एक ही जन को लेके आ सकते हैं. आगे पढ़ेंगे अपन कि ये कहां से आएगा बंदा. ये सेम रिव्यूअर की फर्म से होना चाहिए एंड इसके पास भी प्रैक्टिस का सीओपी होना चाहिए. शुड ऑल्सो बी इन प्रैक्टिस. ठीक है. देन द नेम ऑफ द क्यूए मतलब क्वालिफाइड असिस्टेंट शुड बी इंटीमेटेड टू पीआरबी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पीयर रिव्यू. फिर सच क्यूए शैल ऑल्सो हैव टू साइन द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे अपन ने आगे पढ़ा था रिव्यूअर के लिए. He shall have no direct interface either with the PU or the PRB. PU मतलब प्रैक्टिस यूनिट या फिर बोर्ड के साथ कोई भी उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए. He shall be from the firm of reviewer. He shall be from the firm of reviewer and should have been working at least for 1 year as a member in practice. As 1 year and member in practice. उसी के फॉर्म से होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस. ठीक है, समझा आपको? तो बच्चों ये था अपना QA के बारे में, क्वालिफाइड असिस्टेंट. बहुत सिंपल है. तो peer reviewer can take help of a qualified assistant. कितने? एक. He should not attract any disqualification under section 8 and 21 of CA Act 1949. अच्छा, आप ये जो नाम है QA का, वो have to intimate it to the PRB. He should also sign the declaration of confidentiality. He should have no direct relation with the PU or the PRB. He should be from the firm of the reviewer. He should be from the firm of the reviewer and having 1 year का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस. 1 year का प्रैक्टिसिंग एज अ मेंबर इन प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 year. ठीक है. सो द पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश टू रिमेंबर हियर इज, ध्यान रखना, QA के लिए, ठीक है, QA के लिए इट इज 1 year एक्सपीरियंस. रिव्यूअर के लिए 10 years का एक्सपीरियंस. इफ यू टॉक अबाउट द रिव्यूअर, सो बच्चों अगर मैं रिव्यूअर की बात करता हूं तो रिव्यूअर के लिए 10 years का एक्सपीरियंस. रिव्यूअर के लिए 10 years का एक्सपीरियंस. एंड अगर मैं QA की बात करता हूं तो 1 year का एक्सपीरियंस. ये ध्यान रखना, MCQ में आ सकता है. अच्छा, रिव्यूअर के लिए लेवल 1 एंटिटी ऑडिट, रिव्यूअर के लिए मैंडेटरी है लेवल 1 एंटिटी ऑडिट 7 years. लेवल 1 एंटिटी ऑडिट 7 years के लिए. समझा आपको इतना चीज? परफेक्ट. एक बार फटाफट दोहरा लो इसको. जस्ट गो थ्रू इट. आई विल जूम एंड सी. Perfect. Done. Now let's proceed further. आ जाओ अभी. नेक्स्ट आंसर वी आर डूइंग इज प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू. अब ये क्या है? ठीक है, सुनो अभी. सो यहां पर है ना बच्चों 3 स्टेज है. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 विल टॉक ऑन प्लानिंग, स्टेज 2 ऑन एग्जीक्यूशन, स्टेज 3 ऑन रिपोर्टिंग. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट फाइनल लेवल थिंग्स, सो फाइनल में अपने एग्जाम में ज्यादा जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है रिपोर्टिंग. वो आता है रिपोर्टिंग का पार्ट. तो ये 4 मार्क का आंसर. ठीक है, बाकी सब आपको MCQ के लिए काम आ सकता है. सो लेट्स डू 1 by 1. फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू. ठीक है, देखो अभी अपन ने पढ़ा था पहला चीज ये, द रिव्यूअर शुड बी a member of ICI having at least 10 years audit experience, बराबर, both cumulative and currently should be in practice. PRB shall
इंटीमेट द रिव्यूअर सो सिलेक्टेड एंड सीक हिज कंसेंट विद इन 7 days। सो क्या होगा, इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड है पीआरबी, वो मैसेज करेगा, आई मीन ईमेल करेगा सब जो रिव्यूअर के एग्जाम दे चुके हैं, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, कि चलो 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 अपने को AB एंड को का रिव्यू करने का है, बताओ कौन कौन फ्री है, और अपना आप कंसेंट दे दीजिए 7 दिन के अंदर, 7 days के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटीमेशन टू पीयू, इंटीमेशन टू पीयू। तो अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पीयू को भी इंटीमेट करेगा इन राइटिंग, क्या, द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स सिलेक्शन फॉर पीयर रिव्यू along with a panel of 3 reviewers and a copy of questionnaire। चॉइस देगा 3 रिव्यूअर की, शाहरुख एंड एसोसिएट्स दे दिया, सलमान एंड एसोसिएट्स दे दिया, सल्लू एंड सैफू एंड एसोसिएट्स दे दिया, ठीक है। एंड साथ में एक क्वेश्चनर देगा कि भैया ये ले पीयू, इसको भर के देना। अब पीयू रिप्लाई बैक करेगी, सो इनिशियल कम्युनिकेशन बाय पीयू। सो क्या होगा, द चॉइस ऑफ रिव्यूअर टू द बोर्ड वो कम्युनिकेट करेगा विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड within 15 days of the receipt of intimation will send completed questionnaire and the list of client, will send completed questionnaire along with the list of client, along with the list of client। कौन से क्लाइंट बच्चों, अश्योरेंस वाले क्लाइंट। कौन से क्लाइंट वाले, अश्योरेंस वाले क्लाइंट, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कैसे सिलेक्ट करेगा, रैंडम बेसिस फॉर रिव्यू। फिर कंफर्मेशन ऑफ विजिट, द रिव्यूअर शैल विद इन 15 days of receiving the information and in consultation with PU will fix the date for on-site review। बच्चों भी on-site review क्या होता है, मतलब वो CA फर्म के वहां जाके ऑफिस में जाके डाका डालना, डाका मतलब अटैक करना, वहां जाके बैठ के सब काम करेगा। फिर टू कंप्लीट द peer review process within the 90 days from the receipt of initial intimation to PU, मतलब ये पूरा जो तामझाम है peer review का, it should be completed within 90 days, within 90 days, within 90 days, within 90 days from the initial intimation to PU, from the initial intimation to PU। फिर द ऑन-साइट रिव्यू शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज, मतलब जो फील्ड विजिट होगी, तो जो शाहरुख एंड एसोसिएट्स AB एंड को में आएंगे वो मैक्सिमम 7 दिन का होना चाहिए, और सब इंक्लूसिव सब मिला हम लोग के 90 दिन का, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, अब अपना स्टेज शो चालू हो गया, एग्जीक्यूशन वाला। इनिशियल मीटिंग किसके बीच में होगी, बिटवीन द रिव्यूअर एंड द PU टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चनर, कि जो आपने जवाब दिया बताओ ये सही है, ये सही है, गलत है, ठीक है। Now, फिर compliance review, that is independence, maintenance of professional skill, standard consultation, staff selection, थोड़ा सा देखो जूम, आंखों को जूम करना, staff selection and supervision and office administration to understand the working and the control procedure of PU। तो ये अलग से आपको आंसर आ सकता है, इसको अपन प्यार से बोलते हैं मिस्सू। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन, मिस्सू। मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी है, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, इंडिपेंडेंस, स्टाफ सिलेक्शन एंड सुपरविजन, ठीक है, एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस, स्टाफ सिलेक्शन, सुपरविजन एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कंप्लायंस रिव्यू अलग से आ सकता है आपको। फिर वो क्या कहता है, he may modify initial samples of selected for review in consultation with PU at execution stage। अब क्या हुआ, जब रिव्यू कर रहा है, उसने देखा कि भैया आप लोग ने नाम बहुत अच्छे से रिलायंस ऑडिट किया, बहुत अच्छे से ABN को बाप एकदम अच्छे से ऑडिट कर रखी है तो ना ही वांट टू चेंज हिज सैंपल, ही वांट टू चेंज हिज सैंपल, उसको सैंपल चेंज करने का है, कर सकता है, यस बिंदास कर सकता है। कौन से स्टेज पे, एग्जीक्यूशन स्टेज पे। कौन से स्टेज पे, एग्जीक्यूशन पे। अब बोला जो TCS का आपने कैसे ऑडिट करके बता दो मुझे। फिर ही विल परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर टू नो द वर्थवाइलनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद करो IPC से ऐसा सिखाया गया था आपको, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, कंप्लायंस प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर। फिर देन ही डिसाइड्स टू रिलाई whether to rely on internal control or not. In case of his reliance, his nature, time and extent of substantive procedure will be less extensive and vice versa। अगर वो सिस्टम पे रिलाई कर रहा है, तो बॉस उसका जो प्रोसीजर होगा, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट का प्रोसीजर, वो कम होगा, एंड वाइस वर्सा। फिर compliance procedure will not be necessary, the size of firm is small or medium, he may adopt only substantive procedure। अब अपने से फॉर्म में एक्सेस कार्ड, थंब इंप्रेशन, पता है वो आजकल चोचले होते हैं, कैमरा में लगाया होता है CA फर्म में भी, अपने में ऐसा वैसा नहीं है। तो जो पीयर रिव्यू रहेगा वो क्या करेगा, वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ऑडिट के 2 ही प्रकार के प्रोसीजर होते हैं, ऑडिट में 2 ही प्रकार के प्रोसीजर होते हैं, कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव, कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव, ठीक है।
नाउ कंप्लायंस प्रोसीजर के लिए होता है इंटरनल कंट्रोल के लिए. इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो क्या लगाएंगे अपन? सब्सटेंटिव प्रोसीजर. क्या लगाएंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर. नाउ ध्यान से देखना भी. नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग. वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आपका सिस्टम बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो रिव्यूअर क्या दे देगा? फाइनल रिपोर्ट दे देगा. क्या दे देगा? फाइनल रिपोर्ट. नहीं, हमारा सिस्टम गड़बड़ था, कुछ गड़बड़ है. अगर कुछ गड़बड़ तो बच्चों कौन सी रिपोर्ट देगा? वो आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. क्या देगा आपको? वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. ध्यान से देखो. एट द एंड ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू पीयू बिफोर एनी रिपोर्ट टू द बोर्ड, कौन सी रिपोर्ट देगा बच्चों? वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू पीयू बिफोर एनी रिपोर्ट टू द बोर्ड इन केस द सिस्टम एंड प्रोसीजर is found to be deficient or where नॉन कंप्लायंस हैज बीन नोटिस. अगर आपका सिस्टम डेफिशिएंट है या नॉन कंप्लायंस मिला है तो कौन सी रिपोर्ट जाएगी? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जाएगी. तभी जाएगी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. ठीक है, नो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अदरवाइज, नहीं तो सीधा फाइनल रिपोर्ट. फिर रिपोर्ट शुड बी ऑन द लेटर हेड, डेटेड, रिव्यूअर का साइन, मेंबरशिप नंबर एंड रिव्यूअर का कोड. मेंबरशिप नंबर एंड रिव्यूअर का कोड. फिर अपन ने पीयू को दिया, पीयू रिप्लाई बैक करेगा. कैसे? इन राइटिंग विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द रिव्यूअर्स. अब दो बातें होंगी बच्चों, दो बातें. या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड होगा या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होगा. ध्यान सुनो, या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड होगा या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होगा. अगर रिव्यूअर सेटिस्फाइड है, इफ द रिव्यूअर इज सेटिस्फाइड, ही विल डायरेक्टली इशू फाइनल रिपोर्ट टू द बोर्ड, फाइनल रिपोर्ट टू द बोर्ड. बट रिव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ही विल सबमिट अ मॉडिफाइड रिपोर्ट टू द बोर्ड. ही विल सबमिट विच रिपोर्ट? मॉडिफाइड रिपोर्ट टू द बोर्ड. फिर अपना जो पीआरबी हो क्या बोलेगा? एक काम सुनो, शाहरुख एंड एसोसिएट्स, सुनो जरा. अच्छा, वो आपने अच्छा रिव्यू किया, आप लोग खुश नहीं उनके रिप्लाई से. ठीक है, आपने वहां में मॉडिफाइड रिपोर्ट दी. एक काम करें, बच्चे लोग को सुधरने का मौका दे, एबी एंड को इंप्रूव करने का मौका दो. आप एक काम करो, आप फिर 12 महीने बाद फिर जाओ. 12 महीने बाद आप जाके कौन सी रिपोर्ट लेना? फॉलो ऑन रिपोर्ट लेना. कौन सी रिपोर्ट? फॉलो ऑन रिपोर्ट. 12 महीने कम भी हो सकते हैं, 12 महीने कम भी हो सकते हैं, बट स्टिल 6 months is required. But still 6 months is required. देखो अभी, if the reviewer is not satisfied with the reply, he will submit a modified report to the board. The board recommends to the PU and instruct the reviewer to carry out the review again. कौन सी रिपोर्ट के लिए? Again after 12 months after follow-on report. After follow-on report, the period of 12 months may be reduced by the board, but it should not be less than 6 months from the date of issue of the report. समझा आपको चीज? इतना है भेजे में. फिर इफ द रिव्यूअर इज सेटिस्फाइड द रिप्लाई, फाइनल रिपोर्ट शुड इनकॉर्पोरेट द फाइंडिंग्स. क्लियर? ये वाला पैरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये कुछ एग्जाम में नहीं आता. Reviewer shall document all his working papers and submit a copy of his working papers to the board if called by a board within 12 months of the completion of review or submission of review report. तो वर्किंग पेपर संभाल के रखने रिव्यूअर को 12 महीने के लिए. कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए. समझा आपको? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का. सुन लो अभी वापस बताता हूँ. रिव्यूअर ने रिव्यू किया ना, अगर सब कुछ बराबर तो सीधा फाइनल रिपोर्ट दे देगा वो बोर्ड को. बट इफ द रिव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड, ही विल सबमिट विच रिपोर्ट? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. इफ द सिस्टम आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट और नॉन कंप्लायंस इज ऑब्जर्व्ड, नो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अदरवाइज. ठीक है, रिपोर्ट वुड बी ऑन लेटर हेड, डेटेड, साइन, मेंबरशिप का नंबर, रिव्यूअर का कोड, सब कुछ जाएगा उसमें. फिर पीयू रिप्लाई बैक करेगा विद इन 15 डेज. ठीक है, रिप्लाई बैक आएगा. रिप्लाई आ गया, दो बातें, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड. इफ यू आर सेटिस्फाइड सीधा फाइनल रिपोर्ट पीआरबी को. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप मॉडिफाइड रिपोर्ट बोर्ड को दे दो. मॉडिफाइड मतलब क्वालिफाई एडवर्स डिस्क्लेमर. ठीक है, फिर बोर्ड बोलेगा इनको सुधरने का मौका दे. कितने महीने बाद? सर 12 महीने बाद. कौन सी रिपोर्ट के लिए? फॉलो ऑन रिपोर्ट के लिए. द पीरियड ऑफ 12 months कैन ऑल्सो बी रिड्यूस, बट स्टिल 6 months इज रिक्वायर्ड. फिर द रिव्यूअर हैज टू मेंटेन द वर्किंग बेस फॉर 12 months. तो ऑल दिस आर योर एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट आंसर. Now next answer guys, it says collection of evidences by peer reviewer. Collection of evidences by peer reviewer. So how do you collect the evidences? So if you remember in IPCC you have studied something called as OICAI. OICAI, observation, inspection, computation, analytical review, inquiry. That same answer will be helpful here. Observation, inspection, computation, analytical review, and inquiry. So it says the peer reviewer collects the evidence by applying the following methods.
inspection mainly consists of examination of documentation, that's working papers and other records maintained by PU. The first point is inspection. Number 2, observation. Observation consists of witnessing a procedure or the process performed by others. For example, while conducting on-site review, the reviewer may review the performance of internal control. तो पहला आ गया inspection, number 2 आ गया observation. 3, while observation and inquiry may be considered as external independent sources of review evidence. These are external sources. Inquiry, ठीक है, inquiry consists of seeking appropriate information from partner, sole proprietor, or other knowledgeable person within the PU. The inquiries may originate from the responses to the answers, to the questions given in the questionnaire. जो उनका response आया उसके पर से वो लोग questions बना सकते हैं. तो बेटा देखो क्या क्या मिला अपने को. आप पहले बोल दोगे inspection, फिर बोल दोगे observation. Inspection किसका करते हैं अपन? Documents का. Observation किसका करते हैं अपन? Procedures का. फिर आप क्या बोलोगे? Observation and ये जो है inspection, ये दोनों क्या है हमारे external sources है. Inquiry हमारे internal होती है क्योंकि अपन अंदर पूछते हैं. किससे पूछेंगे? पार्टनर से, सोल प्रोप्राइटर से, या फिर अदर नॉलेजेबल पर्सन इन द पीयू. फिर द रिव्यूअर in order to carry out the review effectively should have an understanding of the documentation maintained by PU. तो आपका सब डिटेल्स होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए. सो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि बस हाउ डू यू कलेक्ट एविडेंसेस इफ यू आर अ पीयर रिव्यूअर. तो आप बोलोगे इंस्पेक्शन से डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर के लिए हो जाएगा, दोनों एक्सटर्नल सोर्स है, इंक्वायरी इंटरनल सोर्स है, किससे पूछने का? सोल प्रोप्राइटर से, पीयू से, अदर नॉलेजेबल पर्सन से, पार्टनर से. समझा आपको? विद दिस योर एंटायर आई हैव डन पीयर रिव्यू का एक्सप्लेनेशन गाइस. So guys, we have done the entire peer review chapter. I hope you guys have understood it. The concept have been very clear now. बहुत सिंपल है. एक CA फॉर्म जो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रही है तो उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है. तो ICAI भी करवा सकते हो, खुद भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. एंड इंस्टीट्यूट रिप्लाई बैक करता हो 30 दिन में हम लोग कर रहे कि नहीं कर रहे. फिर वो पूरा तामझाम है प्रोसेस का. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. फिर पीयर रिव्यू की फ्रीक्वेंसी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 1 in 3 years, 1 in 4 years, 1 in 5 years. ठीक है. एक CA फॉर्म को जो PU बोलते हैं प्रैक्टिशनर, उसको रिव्यू करने के लिए कौन आएगा? उससे कहा भाई जो पीयर रिव्यूअर है वो ही आएगा. ठीक है. ध्यान रखना ये कौन सा एंगेजमेंट को कवर करता है? खाली अश्योरेंस एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, सिंपल भाषा में ऑडिट. समझा आपको होगा? सो गाइस, आई विल बी रेगुलरली कमिंग ऑन दिस चैनल अनअकैडमी CA फाइनल with lot of topics of audit, and a few other teachers will also be coming with other subjects and other topics. So I request you guys to press the bell icon, subscribe to this channel, and we'll be starting with the regular batch soon on Unacademy platform. So you have to download the app, go to Google Store or iOS Store, download the app and take a subscription. So where we will be having a live session where you can take your doubts, all doubts will be get clear simultaneously. In case you take a subscription plan, use the code ABCA to get discount. ABCA. Okay guys, see you, take care, bye bye, enjoy.